धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु जी તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ जी આ સુંદર દિવસ પ્રભુ તમારા જીવનની અંદર આપ્યો છે માટે તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ जी ઘણા લોકો પ્રભુ આ દિવસને જોઈ શક્યા નથી પરંતુ પ્રભુ जी તેઓના જીવતા ભૂમિની અંદર જીવતા રાખ્યા છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લॉर्ड હાલેલુયા પ્રભુ जी તમારી સ્તુતિ આરાધના કરવા માટે આ ઉત્તમ તક પ્રભુ તમારા જીવનની અંદર આપ્યો છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ जी અહીં બેઠેલા હરેકના જીવન પિતા તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ प्रभु जी અમારાથી જાણતા અજાણતા प्रभु जी के पापों अपराध थे के प्रभु हमारा जीवन અને प्रभु તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ प्रभु जी અમારા પાપો અપરાધ प्रभु તમે જાણો છો प्रभु તે અમને ક્ષમા કરો રાજા હાલેલુયા प्रभु जी અમારા મનોને प्रभु તમે શુદ્ધ કરો प्रभु તમારું વચન કહે કે જો મનમાં શુદ્ધ છે તે દેવને જોશે ત્યારે પિતા प्रभु जी આજે અમારા મનોની અંદર प्रभु जी ઘણા વિચારો આવે છે ત્યારે પિતા प्रभु जी અમારા મનોને प्रभु તમે સ્થિર કરો રાજા હાલેલુયા प्रभु जी અને અહીં બેઠેલા હરેકના જીવનનો સંપૂર્ણ કબજો પ્રભુ તમે લો પ્રભુ જો હજી રસ્તાઓની અંદર છે પ્રભુ આવી રહ્યા છે એમને તમે આવવામાં સહાયની મદદ કરો ને પ્રભુ જો આવી શક્યા નથી એમને પણ પ્રભુજી તમે આવવાના માટે પ્રભુ મન આપો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી આ મીટિંગને પ્રભુજી શરૂઆતથી અંત સુધી પ્રભુ સંપૂર્ણ કબજો પ્રભુ તમે લેજો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી આત્માથી સત્યતાથી ભરપૂર થઈને પ્રભુ તમારી સ્તુતિ આરાધના કરી શકીએ માટે પ્રભુ આજે પ્રભુ તમારી કૃપા અને પ્રભુ અમે માંગીએ છીએ प्रभु जी તમારો પવિત્ર આત્માને સામર્થ્ય પ્રભુ તમે આ જગ્યાને ભરી દો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ जी વચન કહે છે કે મારા નામે બે કે ત્રણ એકમાં મળે છે ત્યારે પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ ઉતરી આવે છે પ્રભુ હા પ્રભુ આજે તમારી ઉપસ્થિતિ અમારા મધ્ય છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા હાલેલુયા પ્રભુ जी અને પ્રભુ जी અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ અમે ઘટતા જઈએ પ્રભુ તમે વધતા જાઓ તમે થવા દેજો રાજા પ્રભુ जी જ્યારે પ્રભુ તમારે ગીત સ્તોત્ર ગાવામાં આવે ત્યારે પ્રભુ जी તમારા આત્મા પ્રભુ આ જગ્યા પર મંડરાતો રહે એવું તમે થવા દો રાજા वजेंद्र वगाड़ना पण प्रभु તમારા હાથ અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુ એવાનું પણ પિતા પ્રભુ जी તમારી જ્ઞાન બુદ્ધિ રાહમણથી પ્રભુ તમે ભરી દો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ जी જ્યારે પ્રભુ તમારો દાસ પ્રભુ વચન લઈને આવે ત્યારે પ્રભુ એમના મુખમાં રહીને પ્રભુ તમે પોતે બોલો રાજા પ્રભુ जी વચનો પ્રભુ અમે કદી સાંભળ્યા નથી જાણ્યા નથી આવા મર્મો ખોલવા માટે પ્રભુ તમારા દાસને પ્રભુ તમે સહાય મદદ કરો પ્રભુ અમે તમારી પાસે કૃપા માંગીએ છીએ લॉर्ड हालेलुया प्रभु તમારી ઉપસ્થિતિ આ જગ્યા પર છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લॉर्ड हालेलुया प्रभु आओ આપણે પ્રભુ સર્વ આપણે જગ્યા પર કરીશું तेरी महिमा के बादल तेरी जगह तेरी महिमा के
પ્રભુજી આ જગ્યા પર પ્રભુ તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ, તમારી ઉપસ્થિત પ્રભુ અમારા મધ્ય છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ. હાલેલુયા. ફરી એકવાર પ્રભુજી અમારા સર્વના જીવન પ્રભુ તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુજી. જ્યારે પ્રભુ ગીતો સ્તોત્રો ગાય ત્યારે પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિને પ્રભુ આ જગ્યા પર માંગીએ છીએ લોર્ડ. હાલેલુયા. પ્રભુજી તમારા પવિત્ર આત્માની સામર્થ્ય ભરપૂર થઈને પ્રભુ તમારા સ્તોત્ર ગાય પ્રભુ તમારા નામને ઉચ્ચાર મહિમાવાન કરી શકે માટે પ્રભુજી તમારી કૃપાને પ્રભુ આ જગ્યા પર પ્રભુ તમે ઉંડેલો રાજ. હાલેલુયા. પ્રભુજી અમારા જીવનનો સગળો મહિમા પ્રભુ તમારા નામની અંદર આપીએ છીએ પ્રભુ, તમે દોરો તમે ચલાવો તારા પ્રભુ ઈસુ નામ અંદર માંગીએ છીએ. આમીન. Hallelujah.
हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे
हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
नदी से पहुँचोगे उस पार तुम सियों के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुँचोगे उस पार तुम सियों के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अपने आंखों को बंद करें। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की समक्ष सामने खड़े हैं। आइए हम हमारा जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ हम दिल की गहराई से करें, क्योंकि उसके उपकार हमारे जीवन पर अनगिनत है। आइए हम उसको याद करें, उसके उपकार को याद करते हुए आभार स्तुति के साथ उसकी तारीफ करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो ही आदर के योग्य परमेश्वर है, वही प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। आइए हम उस जीवित परमेश्वर को एक जीवित आराधना की भेंट चढ़ाएं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से बलिदान कर दिया, उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। आइए हम उस महान प्रेम को याद करते हुए उसकी हम आराधना करें। हम मिलकर गाएंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। सभी को आता है, अच्छी ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर हम ये गीत को गाएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति
वो महान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी सुनने वाला, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करने से ना रुके, अपने घोटों के द्वारा, अपने हृदय की प्रेरणा से परमेश्वर को एक आभार स्तुति की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं। वो ही सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है, उसके समान कोई नहीं है। सारे सवालों का जवाब उसके पास है। हर कठिन परिस्थिति में वो हमारी अगुवाई करने वाला, हर बंद दरवाजे को खोलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सारी बीमारी को दूर करके हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वही हमारे आशीषों का सौदा है, वही हमारे ज्ञान का भंडार है। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करने से न रोके। वो महान अधिकारमय, वो करने में महत्वपूर्ण अधिकारमय परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा भरोसा है, वही हमारी चट्टान है, वही हमारे झुकने की जगह है। आइए हम मिलकर गाएंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। क्योंकि उसने हमें मौत से बचाया है, उसने हमें नया जीवन दिया है, उसने हम सभी को नाम लेकर पुकार लिया है। इस पृथ्वी के मंडान के अगाऊ उसने हमें नाम लेके पुकार लिया है। हमारा कोई अस्तित्व न था, तब से उसने हमें नाम लेकर पुकार लिया। हम सभी के लिए उसके पास एक बेहतरीन और अद्भुत योजना है। आइए हम विश्वास से प्रभु की आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तेरी करुणा सदा की है खुदा। सब बातें तू हमारे लिए, उसमें तू भलाई को ही उत्पन्न करता है। धन्यवाद खुदावन, आप महान हो परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। आपके सारे उपकार को हम याद करते हुए धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में चढ़ाते हैं खुदा। क्योंकि तू स्तुति पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है राजा। तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा सच्चा सहारा है। अति सहज से मिलने वाला तू हमारा सहायक है पिता परमेश्वर। तू ही हमारी शरण है खुदा। हालेलुया। आप अद्भुत हो पिता परमेश्वर, आप सर्वज्ञानी और प्रभु हालेलुया सर्वव्यापी परमेश्वर हो खुदावंद। हालेलुया। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा हम आपके चढ़ाते हैं खुदावंद। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा जीवन बेजान था, बेडौल था, पर जब तेरे आत्मा हम पर ठहरी तो हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन संभल गया खुदा। तूने हमें कई ऐसे दानों वरदानों से तूने हमें सुशोभित किया। इसलिए धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर, ये अंतिम दिनों में है पिता परमेश्वर, इस दान वरदान को उपयोग करने के लिए तो हमें ऐसा प्रभु हालेलुया एक ऐसा ज्ञान से तो हमें भर दे खुदा कि हम प्रभु एक मूर्छित अवस्था में नहीं, पर एक प्रभु आत्मा से भरकर एक जो रोशनी तूने हमें दी है, एक ज्योति के समान, एक नमक के समान हम इस जगत में जीने वाले बन जाए। शब्द होने दे खुदा। वचनों के लिए भी कोशिश प्रार्थना में उपाय करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करे છે પ્રભુજી, સર્વશક્તિમાન સર્વસામર્થ્ય પ્રભુ, તમારા રાજ્ય અને પ્રભુ સર્વશક્તિમાન દેવ માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી, તમે અમારા પાપ અપરાધો પ્રમાણે અમારી સાથે વર્ત્યા અને માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી, સુંદર ગીતો સૂત્રો દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને અમે ઊંચું કરી ગયા પ્રભુ, તમારી ઉપસ્થિતિ અમારા મધ્ય હતી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા। ફરી એકવાર પિતા પ્રભુજી તમારા વચનો તરફ પ્રભુ અમે જનાર છે ત્યારે પ્રભુજી અમારા હરેકના જીવોને પ્રભુ તમારા હાથ અંદર સોંપીએ છીએ। અહીં બેઠેલા હરેક નાના મોટા હરેકનો જીવોનો સંપૂર્ણ કબજો પ્રભુ તમે લો રાજા। હાલેલુયા। હરેકના ભટકતા વિચારો પ્રભુ તમે કેન્દ્રિત કરો, હરેકને પ્રભુજી સાંભળનારું મન અને ગ્રહણ કરનારો આત્મા પ્રદાન કરો રાજા। પ્રભુજી અરે દાસ પ્રભુ તમારા પુલપિતની જગ્યા પર ઉભો
નહીં ત્યારે પ્રભુ જેમના મુખ પર મારે પ્રભુ તમે પોતે બોલો રાજા, હરેક વચન પ્રભુ સામર્થ્ય બને એવું તમે થવા દો રાજા, હાલેલુયા. હરેક વચન પ્રભુ અમારા જીવન અંદર કાર્ય કરનાર બની શકે એવું તમે થવા દેજો રાજા, હાલેલુયા. જે કંઈ પિતા વચન બોલવામાં આવે 100 ગણા 7 ગણા અને 70 ગણા પર આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દેજો પ્રભુજી. જ્યારે પ્રભુ તમારો અંતિમ સમયની અંદર અમે જીવન જીવી રહ્યા છે ત્યારે પિતા પ્રભુજી અન્યનો નહીં કે જડ નહીં પરંતુ પ્રભુ તમારા વચનો દુષ્કાળ પર ના છે ત્યારે પિતા પ્રભુજી અંતિમ દિવસોની અંદર પ્રભુ અમે સાવધ બની જઈએ અને પ્રભુજી તમારા વચનો પ્રભુજી અમારા સુધી બોલવામાં આવે વચનો અનુસાર પ્રભુ અમે જીવન સુધારીને વચનો અનુસાર જીવન જીવનારા બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા, હાલેલુયા. ફરી એકવાર પ્રભુ અહીં સગડાના જીવવાનો પિતા તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુ, તમે દોરે તમે ચલાવો ઉદ્ધાર પ્રભુ શું નામ દ્વારા માંગીએ છીએ, આમેન. Praise the Lord, हालेलुया. यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ विक्ट्री की चर्च में. कोई आवाज नहीं बच्चे लोग? हम लोग उत्पत्ति की किताब में से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे, सीख रहे. पिछले संडे हम लोगों ने अब्राहम के जीवन को देखा था कि उसके जीवन में परमेश्वर अलग अलग समय को देता है. उसके बाद हम इसहाक के जीवन के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे. उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और 3 आयत में हम पढ़ते हैं. परमेश्वर ने इब्राहिम को अपनी बुढ़ापे में उसको एक बेटा दिया 100 साल की उम्र में. कितने साल की उम्र में? 100 साल की उम्र में. और सारा जो थी 90 साल की थी, अब्राहम 100 साल का है. असंभव था लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है. परमेश्वर ने सब कुछ क्या बनाया? संभव कर दिया, हालेलुया. और उसके बाद उसका जन्म होता है और उसके बाद 8वीं आयत में वो बड़ा होता है. उसके बाद उत्पत्ति 25 और 20 में हम आ जाएंगे. यहाँ पर उसकी शुरुआत होती है उसके जीवन की. और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन विवाह कर लिया. तो यहाँ पर जब वो 40 साल का हुआ तब उसकी शादी हुई. ओके, उस दिनों में बहुत लंबी उम्र होती है, उसके बाद वो लोग शादी कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पर 40 साल की उम्र उसकी हुई तब उसकी शादी रिबका के साथ हुई. ओके, और उसके बाद उसका विवाहित जीवन जो है वो शुरुआत होती है. उत्पत्ति 22 और 9 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो इब्राहिम था उसका पिता, उसको बलिदान के लिए जब वो ले जा रहा है तब पहली बात ऐसा गुण उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो अपने पिता के अधीन होता है. हालेलुया. वो कहता है पिताजी लकड़ी है, अग्नि है, सब कुछ है, बराबर, लेकिन बलिदान के लिए मेढ़ा, बलिदान के लिए जो मेढ़ा चाहिए वो नहीं है. तो यहाँ पर वो पिता के अधीन हो जाता है. ओके, तो पहला गुण उसके जीवन में होता है कि अपने माता पिता जो है उसके अधीन रहना. ओके,
तो आपको और मुझे भी, सब बच्चों को पहला गुण हमारे जीवन में होना चाहिए इसहाक के जीवन के द्वारा, और वो है पिता और माता के अधीन हमारा जीवन होना चाहिए। ओके, जब हमारा जीवन परमेश्वर पिता के अधीन हो जाता है, संसार के माता पिता के अधीन हो जाता है, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारा बलिदान वो स्वीकार करता है। ओके, हम जो भी करते हैं वो बलिदान परमेश्वर स्वीकार करता है। तो पहला गुण उसके जीवन में था पिता के अधीन। दूसरा है उत्पत्ति 24 और उसका 63। सांझ के समय वो मैदान में स्नान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे थे। दूसरी बात, मनन करने वाला, परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला, ध्यान करने वाला व्यक्ति था। ओके, यानी कि आपको अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना है। परमेश्वर ने सबको कितना समय दिया है, 24 घंटा दिया है। ओके, जितना समय मिले आपको परमेश्वर के वचन को उस पर ध्यान लगाना है। ओके, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, परमेश्वर की भलाई पर ध्यान करते हैं, तब आपके जीवन में आप स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, दूसरा और वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है ऐसा व्यक्ति क्या करता है, रात दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। क्या करता है, मनन करता है, ध्यान लगाता है। तीसरा वचन में लिखा, भजन संहिता 1 और 3 में लिखा है, वो व्यक्ति कैसा है, एक नदी के किनारे पर लगाया गया वृक्ष के समान है, पेड़ के समान है, जो हर एक ऋतु में उसकी जड़ क्या है, फैली हुई है, वो हर एक ऋतु में फल लाने वाला होता है। तो हमें ऐसा वृक्ष परमेश्वर बनाना चाहता है जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करने वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रभु के वचन पर मनन करोगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करोगे, जो प्रभु का वचन कहता है वैसा करोगे, तब आप एक सफल व्यक्ति हो जाओगे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि इसहाक के समान प्रभु के वचन को क्या करें, हम मनन करें, ध्यान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऊंट होता है, ऊंट क्या करता है, खाने के बाद वो क्या करता है, खाने को चबाता है। क्या करता है, बार बार वो चबाता है और उसके बाद वो निकलता है, खाता है। ओके, वैसे आपको और मुझे भी हर दिन प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, क्या करना है, मनन करना है, ध्यान लगाने उस वचन पर। प्रभु ये वचन क्या कहता है, ये वचन परमेश्वर के बारे में क्या कहता है, मनुष्य के बारे में क्या कहता है, कोई आज्ञा है कि जिससे मुझे पालन करना है, क्या कोई चेतावनी है जिससे मुझे सावध रहना है, प्रश्न करना है। 1 अध्याय पढ़ो, 5 अध्याय पढ़ो, उस वचन में आप क्या सीखते हैं उसको आपको मनन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, उत्पत्ति 25 का 20 में हमने देखा कि वो विवाहित जीवन जीने वाला व्यक्ति था। कैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति था, शादीशुदा विवाहित जीवन जीने वाला व्यक्ति था। ओके, अंतिम दिनों में एक ऐसी चिन्ह है कि लोग क्या करेंगे, शादी मना करेंगे, शादी करना पाप है। बराबर। तो अंतिम दिनों का जो चिन्ह है वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में होने वाली बात है। ओके, और इसीलिए यहाँ पर प्रभु चाहता है कि स्त्री और पुरुष का लग्न, मैरिज होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सारे देश में जो परमेश्वर ने बनाया स्त्री और पुरुष, लेकिन आजकल जो कायदा बन रहा है, कायदा क्या बन रहा है कि स्त्री मैरिज कर सकती है, पुरुष लग्न कर सकता है। तो ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। ओके, और इसीलिए आपको और मुझे सावध रहना, कोई भी राज्य में हो, कोई भी देश में हो, लेकिन यदि प्रभु का वचन के विरुद्ध में कुछ भी नियम बनता है तो आपको वचन में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि देश का कानून कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि प्रभु के वचन के विरुद्ध में वो जाता है तो पत्रस
और वो लोगों ने क्या कहा कि हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बराबर। लेकिन हमें प्रभु का कहना पहले मानना पड़ेगा। हालेलुया। नियम कुछ भी है, लेकिन प्रभु का कहना पहला मानना पड़ेगा। हालेलुया। जब हुक्म हो गया कि सारे लोगों को, जो ज्ञानी लोग है, उसको मार दिया जाने वाला है, तब दानियल ने क्या किया? जैसा वो प्रार्थना करता था वैसा ही उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, नहीं? हालेलुया। उसने 3 समय जो प्रार्थना करता है, खुली दरवाजा या विंडोज खोलकर उसने प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि कुछ भी हो जाए, आपको और मुझे वचन के अनुसार अपना जीवन को हमें बिताना है। 25 और 21 में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। क्या किया उसने? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। जब परिवार में समस्या आती है, पति पत्नी के जीवन में समस्या आती है, तो आप दोनों को प्रार्थना करना है। हालेलुया। रिबका को बच्चा नहीं हो रहा था, उसको पता चला कि डॉक्टर का काम नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तब उसने रिबेका के लिए प्रार्थना किया। यानी कि आपको और मुझे क्या करना है? प्रार्थना करना है। कुछ भी समस्या घर में आती है, बच्चों के जीवन में समस्या आती है, तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विजय पाने वाला व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। जब समस्या आती है, आप अपने घुटनों पर आ जाइए, आंसू के साथ प्रार्थना करें, तब परमेश्वर द्वार को खोलेगा, असंभव संभव हो जाएगा। हालेलुया। रिबका को बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन जब अपने पति ने उसके लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसकी प्रार्थना को, वहां लिखा है, आगे क्या लिखा है? और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। हालेलुया। वहां बाइबल यीशु ने क्या कहा? जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से हो मिलते हैं, वहां पर प्रभु हाजिर होता है। जहां पर पृथ्वी पर 1 या 2 एक मन के होकर कुछ भी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो परमेश्वर उसको वो देगा। यानी कि पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मन के हो जाए, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर ने वैसा ही किया। तो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, पारिवारिक प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है कि परिवार में प्रेम बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 26-25 में भी लिखा है कि इसहाक जहां जहां गया, वहां पर उसने वेदी बनाई और प्रार्थना की। क्या किया? वेदी बनाई और प्रार्थना किया। 26 और 25 में लिखा है। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तम्बू वहीं खड़ा किया, और वो वहां इसहाक के दासों ने खुआ। ओके, सो यहाँ पर प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं बात, उसका गुण उसके जीवन में, उत्पत्ति 26 अध्याय 1 से 5 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दर्शन को पाने वाला, अगुवाई को पाने वाला, भविष्यवाणी को पाने वाला व्यक्ति था। ओके, 1 से 5 कलम जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार पूर्व परिस्थितियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। परमेश्वर ने उसको कहा, तुम मिस्र में मत जा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ मार्गदर्शन देता है, दर्शन देता है, अगुवाई करता है और कहता है, मार्गदर्शन देता है अपने जीवन में, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यहाँ पर प्रभु ने उसको कहा, तुम मिस्र में मत जा, लेकिन जहां पर तू है वहां ही तो ठहर जा, रुक जा। ओके, उसके बाद जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु उसको कहता है कि तू इस देश में रह, तो मैं तेरे साथ रहूंगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर उसको देता है। फिर और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता
करूंगा। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? प्रतिज्ञा देता है। किसको प्रतिज्ञा देता है? इसहाक को प्रतिज्ञा करता है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे वंश पृथ्वी के, तेरे संतान जो है आशीष का कारण ठहरेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? जब वो दर्शन देता है, दर्शन के साथ प्रभु अगुवाई देता है और भविष्य की बातों को, प्रतिज्ञा को परमेश्वर हमें देता है। तो यहाँ पर उसके बाद पिता के कारण आशीष पाने वाला व्यक्ति था। ओके, हमको जनरेशन का ब्लेसिंग, आने जो पीढ़ियों का आशीष परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। वहां पर उत्पत्ति 26 और 5 में यदि हम पढ़े तो बहुत अच्छा लिखा है, 5 अच्छी बातों को वहां पर लिखा है, पढ़िए। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। तो यहाँ पर अब्राहम ने किसकी मानी? परमेश्वर की मानी। ओके, सो क्या आप पिता के कारण आशीषित हुए हैं? स्वर्गीय पिता हमें आशीष देता है। ओके, अब्राहम ने यहाँ पर पहली बात क्या किया? परमेश्वर की आवाज को माना, सुना, यानी माना मतलब तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपने पिता के समान, इसहाक अपने पिता के समान आशीष पाना चाहता है, तो उससे भी क्या करना है? परमेश्वर ने इसहाक को अपने पिता के कारण आशीष दिया, लेकिन आपको और मुझे भी क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को मानना है। ओके, जो भी परमेश्वर कहता है, पहली बात परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? अपना एक लौता पुत्र को तो बलिदान के रूप में चढ़ा दे। ओके, तो अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज को माना। दूसरा क्या? सौंपा। ओके, जो कुछ परमेश्वर ने फरमान दिया था, जो भी उसको कहा गया था, उसने उसका पालन किया। और वहां लिखा है आज्ञाओं का पालन किया, विधियों का पालन किया और नियम का पालन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर बहुत सारी बातों को अब्राहम ने माना और इसीलिए परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया। 26:6 इसलिए इसहाक गरार में रह गया जब उस स्थान ओके, अच्छा, यहाँ पर आज्ञा पालन करना। परमेश्वर ने क्या कहा था? मिस्र में मत जा, लेकिन जहां पर मैं कहूं वहां पर तू ठहर जा। तो इसहाक गरार में ठहर गया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे भी क्या करना है? जहां पर परमेश्वर कहता है वहां पर हमें ठहर जाना है, रहना है। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा हमें करना है। सो बाइबल में जितने लोगों ने आज्ञा का पालन किया, वे सारे लोग क्या हुए? आशीषित हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो काना गांव, जो चमत्कार वहां पर हुआ, किसके कारण चमत्कार हुआ? किसके कारण चमत्कार हुआ काना गांव में? प्रभु यीशु चमत्कार करने वाला है, लेकिन किसके द्वारा वो चमत्कार वहां पर हुआ? ये वो दास लोग जो थे, सेवक लोग जो थे, बराबर जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने यीशु की आज्ञा को पालन किया और वहां पर 6 कुंड जो बाहर थे उन्होंने पानी से भर दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो पानी जो था, वो कारभरी जो था, जरा उसको उन्होंने चखा। ओके, और उसके वहां पर लिखा है कि वो द्राक्षरस जो था वो पहले से भी बेहतर था। ओके, यानी कि परमेश्वर ने वहां पर आज्ञा पालन के द्वारा क्या किया? चमत्कार को किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 कोढ़ी लोग थे, 10 कोढ़ी लोग। यीशु ने कहा कि अपने आप को याजक को जाके बताओ। ओके, और ये लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे थे यरूशलेम में और ये 10 लोग चंगे हो गए। ओके, लेकिन एक जो था, कौन था वो? सामरी था, और वो वापस आया और यीशु का धन्यवाद किया।
हालेलुया। तो कई बार चंगाई मिल जाती है आज्ञा पालन करने के द्वारा, लेकिन धन्यवाद के लिए, क्योंकि सामरी जो थे वो याजक के पास नहीं जा सकता, बराबर सिर्फ यहूदी लोग वही याजक को पास जा सकते हैं। तो सामरी वापस यीशु के पास आता है, क्योंकि यीशु मसीह उसके लिए याजक के समान थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञा का पालन करो, तो परमेश्वर क्या करेगा? चमत्कार करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा। सो यहाँ पर परमेश्वर ने ईसा को बोला कि जहां पर मैं कहता हूं वहां पर तू ठहर जा, और वो वहां पर रहने लगा। उत्पत्ति 26 और 12, 13, 14। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छा क्या लिखा है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दिया। किसने आशीष दिया? हालेलुया। किसने आशीष दिया? यहोवा ने उसको आशीष दिया। तो यहाँ पर बोने का काम किसका है? हमारा। किसका काम है? हमारा। हालेलुया। इसहाक ने बोया। कब बोया? जब अकाल चल रहा था, जब उसके पास पैसे नहीं हो गए, उसके पास तकलीफ हो गई, समस्या होती है, उस समय में उसने खेत में बोया, धान को बोया। ओके। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, और कितना प्राप्त किया उसने? 100 गुना। कितना प्राप्त किया? कितना प्राप्त किया? 100 गुना उसने प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 13 कलम जब हम पढ़ते हैं, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। तो यहाँ पर परमेश्वर धनवान बनाने का आशीष उसको दिया। वो बड़ा और बढ़ता गया। हालेलुया। उसकी भीड़ बकरियां बढ़ते गए, ऊंट बढ़ते गए, गधे बढ़ते गए, उसकी खेती बाड़ी प्रभु ने आशीष दिया, उसके चाकर लोग बढ़ते गए। परमेश्वर ने उसको धनवान बना दिया। हालेलुया। कौन धनवान बनाता है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। और बढ़ने की, उन्नति का आशीष दिया। फिर अति महान पुरुष परमेश्वर ने उसको बना दिया। सब में परमेश्वर आशीष देता है। और 14 का दूसरा भाग पढ़ते हैं, क्या लिखा है? जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। फलिस्ती लोग, शत्रु लोग क्या करते हैं? जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो शत्रु लोग खुश नहीं होते। ओके। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन ऐसे लोग आपके जीवन में आजू बाजू हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। वो आपकी क्या करते हैं? अनदेखाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। हालेलुया। और इसीलिए आपको बहुत सावधानी से अपने आप को इस संसार में जीवन जीना है। हालेलुया। क्योंकि सब मित्र नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको उन्नति देता है, प्रभु आपको बढ़ाता है, आशीष देता है, तब शत्रु की आंखें आप पर टिकी रहती है। क्यों? अदेखाई, जलन करने के लिए, आप कैसे गिरोगे ऐसा देखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। उसके बाद उत्पत्ति 26 का 18। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। ओके। सो यहाँ पर इसहाक ने क्या किया? जो कुएं शत्रु लोगों ने रेती से भर दिए थे, उसने वापस उसको खुदाई किया, और जो नाम अपने पिता ने डाला था वही डाला। ओके। लेकिन यहाँ पर 3 कुएं की बात हम देखेंगे। यहाँ पर आगे 3 कुएं उन्होंने खोदे। ओके। और पहला कुआं जो है 20 आयत में है। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा। यहाँ पर पहला कुआं है
जहां पर झगड़ा हुआ। क्या हुआ? झगड़ा। बोलिए झगड़ा। एसिड का मतलब है झगड़ा। ओके, तो परमेश्वर जब आपको एक ऊंचे लेवल में जब लेने आ रहा है, बराबर, आपको एक नए स्तर पे ले जाना चाहता है, तब पहली बात होती है आपके जीवन में तकरार होती है। क्या होती है? तकरार होती है। अब्राहम के गोवाले चरवाहे के बीच में और लूत के चरवाहे के बीच में क्या हुई? तकरार हो गई। ओके, झगड़ा हो गया। तब परमेश्वर ने दोनों को अलग कर दिया और परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया, लूत ने एक अच्छी जगह को चुना। लेकिन जब तकरार होती है, कुछ अच्छे के लिए भी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ आपको सिखाने के लिए झगड़ा होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऐसे का मतलब है झगड़ा, तो यहाँ पर पहला एक कुआं खोदा गया जहां पर गेरार के चरवाहे लोगों ने झगड़ा किया। ओके, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारा है, लेकिन रुकना नहीं है। तकरार होती है, जीवन में झगड़ा आता है, तो आपको रुकना नहीं है। तरक्की आपके नजदीक हो सकती है। हालेलुया। आपकी उन्नति आपके नजदीक हो सकती है। इसीलिए तकरार होती है, झगड़ा होता है, बिजनेस में, नौकरी में, कुछ भी होता है, आपको रुकना नहीं है। हालेलुया। ये पहला कदम है, क्योंकि ईर्ष्या आती है, जलन आती है, तो क्या होता है? झगड़ा होता है, तकरारें होती है। ओके, और ये सब शैतान करवाता है। कौन करवाता है? शैतान करवाता है। हमारा खुद का स्वभाव, अधिकार, ईर्ष्या वाला जो स्वभाव होता है, उसके कारण हम झगड़ा करते हैं, तकरार करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा बेहतर होता है, तब आप उसके साथ क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, तकरार करते हैं। लेकिन यहां पर इसहाक रुका नहीं। दूसरा 21 का, उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सिदना रखा। सिदना का मतलब है शत्रुता, बैर रखना। ओके, दूसरी बात, पहला झगड़ा हुआ, दूसरी बात ये झगड़ा और तकरार किस रूप में, परिस्थिति पर बदल गया? दुश्मनावट में बदल गया, बैर रखने की बात आ गई। ओके, जब परमेश्वर ने दाऊद को बढ़ाया, एक चरवाहा लड़का था, परमेश्वर ने उसके द्वारा गोलियत को हरा दिया, और जो स्त्रियां, इजराइल की जो स्त्री लोग थी, उन्होंने गायन में क्या गाया लिया? एक गीत गाया कि साउल ने 1000 को, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। ये गीत जब उन्होंने गाया तो साउल को बहुत बुरा लगा, बराबर। और उस दिन से बाइबल बताती, उस दिन से दाऊद का वो शत्रु बन गया। ओके, तो शत्रुता कभी भी आ सकती है, बराबर। जब प्रभु आपको उठा सकता है, आशीष देगा, तब आपके शत्रु अंदर से और बाहर से भी खड़े हो सकते हैं। और इसीलिए बहुत ध्यान रखने का है, सिदना में आपको रुकना नहीं है। ओके, प्रभु यीशु ने क्या बोला? शत्रु के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या करना है आपको? प्रार्थना करना है शत्रु के लिए। हालेलुया। जब आपके शत्रु बढ़ जाए, आपके लिए बहुत बुरा बुरा काम करें, तो आपको उनको क्या करना है? मिठाई देना है। क्या देना है? मिठाई देना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, जब तू अपने शत्रु को क्या करता है? शत्रुता के बदले प्रेम दिखाता है, तो क्या करता है? उसके सिर के ऊपर अग्नि के समान तो अंगारा डालता है, यानी कि अच्छा काम करता है। उसको लगेगा ये तो मैंने उसको शत्रुता किया, मैंने उसको दुश्मन बनाया, लेकिन ये तो मेरे पर क्या कर रहा है? प्रेम बरसा रहा है मेरे ऊपर। ओके, हम लोग उल्टा करने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। घृणा के बदले में हमें भलाई करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर दुश्मनावट हो गई। तीसरी बात, जब कुआं खोदा गया, 22 निकालो। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम याकूब रहोबोत रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर तीसरे स्थान में प्रभु उसको ले गया, रहोबोत। रहोबोत का मतलब क्या है? विशालता।
विशाल जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब हम अधिकाई ईर्ष्या में रुक गए होते, झगड़ा में रुक गए होते, तो परमेश्वर हमें विशाल जगह में लेके नहीं आता। शत्रुता में हम टिके रहते हैं कि भाई ये मेरा शत्रु है, मैं क्या करूं, हताश हो जाते हैं। जैसे 40 दिन तक इस्राएली लोग निराश हो गए थे। वो फलिस्ती आकर, गोलियत आकर उसको बोलता था तेरा परमेश्वर ऐसा है, ऐसा है। लेकिन 40 दिन के बाद परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस गोलियत को हरा दिया। शत्रु की लिमिट है, शत्रु की क्या है, मर्यादा है, समय, उसका समय निश्चित है, उसका समय में उसको बांधा गया है। हालेलुया। शत्रु आता है, शैतान आता है, अय्यूब की परीक्षा करता है, कितने परवान की जितना दिया है उतना ही कर सकता है। हालेलुया। तो शत्रुता लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए आपको उस शत्रुता से, बैर भाव से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप प्रेम से भर जाएंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, रेहोबोत जो है विशालता का जगह में, जहां पर कोई कंप्लेन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विशालता में जब प्रभु हमें लाएगा, वहां पर प्रभु हमें सफलता देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर इसहाक के जीवन में ये 3 स्तर के बातों में प्रभु उसको लाता है। उत्पत्ति 26 और 28 को यदि पढ़ेंगे, उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अंततः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की और तुझको दूसर से विदा किया, उसके अनुसार वो भी हमसे कोई बुराई न करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उसके यहाँ पर 2 बातों को, दूसरों की गवाही हमारे लिए क्या है। इसहाक के बारे में ये 2 लोगों ने 2 गवाही बोला। पहला गवाही दिया कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यहोवा तुम्हारे साथ है। और दूसरा गवाही कौन सा था? 29 का अंतिम वचन लिखा है, परमेश्वर ने यहोवा के द्वारा तो आशीषित है। हालेलुया। 2 गवाही को दूसरों लोगों ने बोला। किसने बोला? अबीमेलेक ने बोला, उसके मित्र ने बोला, और सेनापति फिकोल जो है उसने लोगों ने गवाही दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे पास परमेश्वर के अलावा दूसरों की गवाही आपके जीवन में होनी चाहिए कि लोग आपके जीवन के लिए क्या बोलते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन नमक के समान होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? उजियाला दीवा के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा जीवन जो खुद अंधेरे में रहता है लेकिन दूसरों को उजियाला देता है। नमक बहुत कम होता है, थोड़ा सा नमक पूरी सब्जी में क्या ला देता है? स्वाद ला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े 5 स्टार होटल में आप खाना खाए जाओ, लेकिन वो डिश कितनी भी महंगी क्यों ना हो, हैं 25,000 20,000 की डिश हो, लेकिन उसमें यदि नमक नहीं है तो लाखों रुपए का खाना, हजारों रुपए का खाना कैसा हो जाएगा? फीका हो जाएगा, बराबर, टेस्टलेस, स्वाद रहित हो जाएगा। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपकी गवाही आप जहां पर रहते हैं वहां पर अच्छी होनी चाहिए। लोग आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद 11 बात, चैप्टर 27 अध्याय में उसका 22। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उस पर बतौर कर कहा, और तो याकूब का साथ है, पर क्या एसाव ही कैसे जान पड़ते हैं? और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के रोआन थे। और उसने उसको आशीर्वाद ओके, यहाँ पर इसहाक की आशीष याकूब के लिए। ओके,
यहां पर दो बातें वहां पर लिखी गई। क्या वो लिखा है? क्या हमने पढ़ा? कि तेरा बोलना क्या है? याकूब जैसा तो बोलता है, लेकिन तेरा हाथ कैसा है? एसाव के समान है। हमारा बोलना, हमारा जो बोलते हैं वैसा हमारा चलना भी होना चाहिए, बराबर? जैसा हम चलते हैं वैसा ही हमारा बोलना होना चाहिए। टॉक वॉक वॉक एंड टॉक, मतलब जो आप बोलते हैं वैसा आपको चलना है, जैसा आप चलते हैं वैसा आपको बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। यहां पर इसहाक ने याकूब को आशीष इसीलिए दिया कि वो पहचान नहीं पाया। ओके, उसने सुना कि आवाज तो याकूब की है, लेकिन उसने स्पर्श किया जो उसके शरीर पर लगाया गया था, चमड़े का वो लगाया गया था, और इसीलिए उसने देखा कि उसके ऊपर बाल है, उसके हाथ में बाल है, और इसीलिए वो इसहाक पहचान नहीं पाया और उसको उसने आशीष दिया। बहुत सारी आशीष उसने दिया, वो बातों को हम यहाँ नहीं देखेंगे। उसके बाद परमेश्वर उसको प्रकट होता है। उसके बाद दूसरी बार 28 अध्याय और उसका 3। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलमय करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडी का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। तो यहाँ पर इसहाक जो है याकूब को आशीष देता है। पिता की आशीष हमें चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आपके माता पिता की आशीष को चाहिए। आज्ञा पालन से एफएससी 6 मेरे ख्याल से और उसका 1 और 2 आयत में क्या लिखा है? एफएससी 6:1-3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। पृथ्वी पर तेरा आयुष्य लंबा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पिता की आशीष हमारे ऊपर होना चाहिए। माता पिता की आज्ञा को जब हम पालन करते हैं, परमेश्वर जैसे इसहाक ने याकूब को आशीष दिया, परमेश्वर वही आशीष आपको और मुझे दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा पालन, माता पिता की आज्ञा पालन करना जरूरी है। अंतिम में इसहाक की मृत्यु हो जाती है। उत्पत्ति 35, 28 और 29। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वो मर गया, और वो बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। ओके, सो यहाँ पर इसहाक की मृत्यु हो जाती है। सो यहाँ पर अच्छी रीति से वो उसने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। ओके, अभी हम लोग इसहाक के बाद जो चारित्र आता है वो है याकूब। क्या है आता है? याकूब। प्रेज़ द लॉर्ड। और याकूब बड़ा दिलचस्प आदमी है। ओके, याकूब का नाम कोई व्यक्ति अपने नाम याकूब नहीं रखता। बहुत कम लोग अपना नाम याकूब रखते हैं, बराबर? क्योंकि उसका नाम का मतलब क्या है? छेतरपिंडी करना, धोखा देने वाला। क्या नाम है? मतलब क्या है याकूब का मतलब? धोखा देने वाला, ठग। पहली बात उसने क्या किया? एसाव जो अपना बड़ा भाई था, उसका पहलोठा का अधिकार जो है उसने ले लिया। ओके, दूसरी बात
जो आशीष, जैसे हमने देखा, जो आशीष एसाव को मिलने वाले थे, उसने जबरदस्ती उस आशीष को अपने पिता से चुरा लिया, बराबर, धोखा देके। तो यहाँ पर 2 बार वो अपने भाई को धोखा देता है। और याकूब जो है अपने पिता के द्वारा पाया हुआ बेटा था, उसके बाद माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला बेटा बन जाता है। लेकिन याकूब के जीवन में हम इस संडे और आने वाले दिनों में हम उसके जगह के बारे में, खास तौर पर कहाँ कहाँ वो गया, उस जगह के बारे में हम सीखेंगे। पहली जगह जो है आज हम उत्पत्ति उसका 28 कौन सी जगह में याकूब गया उसके बारे में, क्योंकि चरित्र में हम लोग इसहाक के चरित्र के बारे में सीख लिया, लेकिन जगह के बारे में क्या महत्व है उस जगह का याकूब के जीवन में। तो यहाँ पर 28 का यदि हम पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे, तो वो जगह का नाम था लूज। ओके, पहली जगह जहां पर वो रुका उसका नाम है लूज। लूज का मतलब है सब गंवाना, ओके, सब कुछ लुटाना। ओके, तो यहाँ पर वो एक ऐसे स्थान में आ गया था जहां पर उसने माता पिता को पीछे छोड़ दिया, अपने भाई को पीछे छोड़ दिया, सब कुछ गवा के एक अकेला डर से भरा हुआ, उसका भविष्य में क्या होने वाला था उसको कुछ पता नहीं था। लूज, सब कुछ गवा दिया था। ओके, ऐसे स्थान में वो आता है और वहां पर लूज को वो बैथेल में परिवर्तन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात, एक ऐसी जगह पर आप और मैं आते हैं, तब वहां पर एक वाक्य वहां पर उसके लिए लिखा गया है 28 का 11। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सूर्य अस्त हो गया था। दूसरी बात, इसलिए उसने उस स्थान के आपके और मेरे जीवन में भी सूर्य क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। कोई भविष्य दिखता नहीं है, रात हो गई है। सूर्य जो सूरज रोशनी देता है, आशा देता है, वो सब कुछ याकूब के जीवन में पहला जगह आया जहां पर सब कुछ क्या हो गया, अस्त हो गया, सूरज भी अस्त हो गया। ओके, तो यहाँ पर पहला स्थान जो लूज है, वहां पर जब वो आया, लेकिन परमेश्वर ने पहला ही लूज को, परमेश्वर ने उसको बैथेल बना दिया। ओके, कैसे बैथेल बना उसको आगे हम पढ़ते हैं, पढ़िए। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। पहली बात उसने किया, उस जगह में से एक पत्थर किसको बताते हैं, परमेश्वर। यीशु मसीह कौन है, कोने का पत्थर है। हालेलुया। अपने जीवन में कोने का पत्थर यीशु को यदि हम पहला स्थान देंगे, तब परमेश्वर लूज को बैथेल में परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। एक घर का मुख्य पत्थर यीशु मसीह, इस कलीसिया का मुख्य पत्थर यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे जीवन का मुख्य कॉर्नरस्टोन कौन होना चाहिए, यीशु होना चाहिए। हालेलुया। जब उसने उस पत्थर को लिया और उस पत्थर के ऊपर सो गया, बराबर, तो परमेश्वर क्या किया, पढ़िए। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक पहली बात उसने स्वप्न देखा। अब तक क्या था, मेरा भाई मुझे मारेगा, भाई की चिंता थी, कोई स्वप्न नहीं आ रहा था, चिंता से भरा हुआ था, बराबर। लेकिन जब प्रभु की सानिध्य में आप आ जाते हैं, बराबर, परमेश्वर के पास आ जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान आ जाता है, परमेश्वर आपको स्वप्न देते हैं। हालेलुया। और ये स्वप्न एक साधारण स्वप्न नहीं था। ये स्वप्न क्या करता है, जगह को बदल देता है, लूज को बैथेल बना देता है। ये स्वप्न ऐसा था जहां पर आगे हम पढ़ते थे
पढ़िए। कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है हाँ। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। ओके, सो अभी ये सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, कनेक्शन परमेश्वर ने उसके साथ बनाया। अब तक कोई भी कनेक्शन नहीं था, संपर्क नहीं था, लेकिन ये सीढ़ी क्या दिखाता है? सीढ़ी क्या बताता है? संपर्क। क्या बताता है? संपर्क। जो ब्रिज होता है, ब्रिज, पुल, ब्रिज क्या बताता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में हम संपर्क करते हैं, कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन यदि टूट जाता है तो क्या होता है? कोई वाहन व्यवहार नहीं होता, बराबर? हमारा संपर्क एक दूसरे से टूट जाता है। वैसे यहां पर भी सीढ़ी जो है हमारा और परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी और स्वर्ग का एक कनेक्शन, वो किसके द्वारा है? यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। हालेलुया। जब इसने एक स्वप्न देखा, उसमें एक सीढ़ी को देखा और उसमें उसने क्या देखा? और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हाँ, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता वहां पर लिखा है कि परमेश्वर वहां पर खड़ा है। हालेलुया। तो यहां पर उसके जीवन में परमेश्वर आ जाता है, लेकिन अभी तक उसने स्वीकार नहीं किया। ओके, जब हम आगे पढ़ेंगे वो परमेश्वर को भी मानता नहीं। ओके, अभी तक वो स्वप्न है। क्या है? इस स्वप्न में वो जी रहा है। परमेश्वर वहां पर इस स्वप्न में आता है और वहां पर वो परमेश्वर उसको प्रतिक्रिया करते हैं। पढ़िए। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं अब्राहम का, तेरा बाप अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है कि मैं कौन हूँ। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ। कहते तू जो वहां पर जो सोता है वो जमीन और सारे तेरे वंशज को मैं तुझे दे दूंगा। फिर और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तेरे संतान पृथ्वी के रज के समान होंगे, रेती के समान होंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में तो फैलेगा। तेरे संतान सारे गोत्रों में आशीषित होंगे। फिर 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तो प्रभु कहता है जो मैंने बोला है जब तक मैं पूरा न करूं तुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वही परमेश्वर आपको और मुझे भी 3 बात कहता है। प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूं, जहां जहां तू जाएगा वहां पर मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। और तीसरा प्रभु कहता है मैं जो बोला हूं वो सब बातें तेरे संबंध में मैं पूरी करूंगा। 16। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। यहाँ पर वो कहता है 3 बातों को बोलता है, ये जगह भयानक है। दूसरी बात बोलता है ये परमेश्वर का घर हो सकता है। और तीसरी बात बोलता है ये आकाश का, स्वर्ग का द्वार हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर उस ऐसी जगह पर वो आके खड़ा है, सो रहा था, स्वप्न में है, अभी जाग उठा। तो यहाँ पर उसने 19 आयत में जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। पहले लूज था और अब उसने उस नाम को बेथेल कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसने 20 और 21 आयत में एक वाचा परमेश्वर के साथ बनाई। ओके, जब भी आप बेथेल में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, तो आपको वाचा बनाना है, करार करना है, परमेश्वर के आगे वाचा बनाना। पहली वाचा उसने क्या कहा? तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से
लौट आओ तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर याकूब परमेश्वर से वाचा कहता है, वहां पर जो और तो वाली वाचा है। कौन सी वाचा है? यदि तू मेरे साथ रहा, फिर मुझे खाना दिया, पीना दिया, घर रहने के लिए स्थान दिया, तो और मैं शांति से मेरे पिता के घर वापस आया, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। और ये पत्थर पर जो स्तंभ के ऊपर मैंने तेल को उंडेला है वो परमेश्वर का भवन बनेगा। और जो कुछ तू मुझे देगा उसका मैं तुझे दशांश दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम याकूब की समान वाचा को परमेश्वर के आगे बांधना है। जब भी हम प्रभु के चरणों में आते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर के आगे करार करना है, वाचा को हमें रखना है। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके हक में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। सो आप कदम मान लीजिए लूज के स्थान में है। पहले स्थान उत्पत्ति में हमने देखा 28 अध्याय में। यदि आप याकूब के समान लूज में खड़े हैं, आप सब कुछ गवा चुके हैं, आशा नहीं है जीवन में, आपको लगता है मृत्यु का डर लगता है, परीक्षा का डर लगता है, आपको मेरा भविष्य कैसा होगा, तो यहाँ पर लूज में आप खड़े हैं। लेकिन परमेश्वर को जब आप स्थान देंगे, पहला स्थान प्रभु को देंगे, पत्थर कॉर्नरस्टोन आपके जीवन पहला स्थान, खूणा मुख्य पत्थर यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तब परमेश्वर लूज को बैथेल बना सकता है। हालेलुया। आप जहां पर खड़े, जहां पर सब कुछ गवा चुके हैं, उस स्थान को परमेश्वर बैथेल बनाना चाहता है। जहां पर स्वप्न आपको आएंगे, जहां पर प्रभु के दर्शन को आप देखेंगे, जहां पर परमेश्वर आपके साथ बातचीत कर सकता है, जहां पर प्रभु आपको प्रतिज्ञा दे सकता है, उस बैथेल में परमेश्वर आपको अनुभव करना चाहता है। लूज को बदलकर प्रभु बैथेल बनाना चाहता है। हालेलुया। कई बार हम कलीसिया में आते हैं, तब भी आपको लगता है सब कुछ अब गवा रहे हैं, मुझे शांति, मेरे ऊपर सूर्य अस्त हो गया है, हमको लगता है। लेकिन आप जब बैथेल में आते हैं, तब आपका पहला स्थान यीशु होना चाहिए आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उस यीशु को पहला स्थान देंगे, तब नई शुरुआत आपके जीवन, नए स्वप्न प्रभु आपको देगा, नया दर्शन परमेश्वर आपको देंगे, जहां पर आपका जीवन बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित, हम खड़े हो जाएंगे। इसहाक के बारे में हमने देखा, इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत शुरुआत किया, आज्ञा पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन किया। एक लौता पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए इब्राहिम तैयार था। इसहाक ने कहा, प्रभु मैं तैयार हूं। अपने पिता के सामने नम्र हो गया, और वो 8 साल का बेटा या 12 साल का बेटा जो था, वो वहां पर परमेश्वर के आगे माता पिता की आज्ञा का पालन उसने किया। हालेलुया। आज आपको और मुझे इसहाक के समान प्रभु आज्ञा पालन करने वाला बेटा बेटी बनाना चाहता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। घर परिवार में हमें प्रार्थना करना है, पारिवारिक प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, सामूहिक प्रार्थना करना है। प्रार्थना परिस्थिति बदलता है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। रिबका जो उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी सुन लिया और उसको दुगना आशीष दिया। 2 बेटे उसका जन्म हुआ, दुगना आशीष। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। शत्रु आपके विरुद्ध में हो सकते हैं, अदेखा ईर्ष्या जलन वाली बातें हो सकती है, शत्रुता आपके विरुद्ध में आ सकती है, लेकिन प्रभु एक नए स्तर में आपको ले जाना चाहता है। रहोबोत विशालता की जगह में प्रभु आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। ईसा को प्रभु ने अलग स्थान में रखा। हालेलुया। मनन करने वाला व्यक्ति था। प्रियो,
आपको मनन करना, प्रभु के वचन को मनन करिए, प्रभु की भलाई के ऊपर मनन करिए, प्रभु की आशीषों के ऊपर मनन करिए, प्रभु जो कहता है उस पर मनन करिए। जब वचन को पढ़ते हैं, प्रभु मुझे क्या कहता है, आज्ञा देता है, चेतावनी देता है, मनन करिए कि आपको उस वचन के अनुसार आपको कैसे चलना है। मनन करने वाला व्यक्ति सफल व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। शबा रबा रबा रियादा, मुंह खोल कर प्रार्थना करें। सब लोग मुंह खोल कर प्रार्थना करें, अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान केंद्रित करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। राजाओं के राजा को धन्यवाद, प्रभु के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ओ शबा रखा तराबा शबा। दूसरे लोग आपके बारे में कौन सी गवाही देते हैं? इसहाक के बारे में कहा कि तू यहोवा तेरे संग है और तू यहोवा से आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। क्या आपके बारे में, मेरे बारे में कोई गवाही देता है कि ये बेटा ये बेटी सच्चा मसीही है? हालेलुया। क्या आप नमक के समान और उजाले के समान जीवन जीते हैं? हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। शिखा थारा बारिदला सबला बारा, परमेश्वर पिता के द्वारा आशीषित व्यक्ति था वो। अब्राहम का आशीष उसको मिला क्योंकि उसका पिता आज्ञा पालन करने वाला था। क्या आपको आपका माता पिता के द्वारा कोई आशीष मिली है? प्रयोग यदि नहीं मिली तो परमेश्वर यीशु के, परमेश्वर के द्वारा जो आप हमारा स्वर्गीय पिता है उसके द्वारा हमें आशीषित करना चाहता है। यदि हम उसका बेटा बेटी आज्ञा का पालन करेंगे तब, हालेलुया, वो जो कहता है मानेंगे तब प्रभु हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। याकूब के जीवन में हमने देखा ठगाई करने वाला व्यक्ति, ओ हालेलुया, दूसरों को सताने वाला व्यक्ति, लेकिन जब वो लूज में आता है परमेश्वर उसको दर्शन देता है, स्वप्न देता है और वहां पर उसके जीवन में परिवर्तन लाता है। एक ऐसी वाचा वो प्रभु के आगे कहता है, उस वाचा ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया हालेलुया। आपको जिस स्थान में है यदि लूज लगता है, प्रभु उसको बेथेल बनाने चाह रहा है, जहां पर दर्शन होगा, जहां पर प्रभु खड़ा रहेगा, जहां पर आपका सीधा कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा, जहां पर प्रभु आपको प्रतिज्ञा करेगा कि मैं तेरे साथ हूं, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे सुरक्षित रहूंगा। हालेलुया। जो मैं तेरे बारे में बोला हूं उसको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रतिज्ञा को आप सुनोगे। बेथेल में शांति है, बेथेल में आशीष है, बेथेल में आराधना है, बेथेल में दर्शन है, प्रभु का दर्शन, स्वर्गदूतों का दर्शन है। हालेलुया। शबा रबा रियातला, मुंह खोलकर प्रार्थना कर। सब लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित हो जाए। पहला स्थान जहां पर याकूब की शुरुआत हुई, चलने की यात्रा की शुरुआत, लूज को प्रभु बेथेल में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप कुछ बातों को गवा चुके हैं, शांति नहीं है और असफलता नहीं है जीवन में, और परीक्षा का डर है, भय है, आप ऐसे स्थान में खड़े हैं जहां पर आपको लगता है सब कुछ अस्त हो गया, अंधेरा आ गया, अब मैं क्या करूं? ऐसे स्थान में प्रभु आपके जीवन को बदल देना चाहता है। जब आप परमेश्वर को, उस पत्थर को, खुना मुख्य पत्थर प्रभु यीशु जब आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, कॉर्नरस्टोन जो यीशु मसीह, उसको जब आप उठा के अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, आपके जीवन में परिवर्तन होता जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जब यीशु नहीं है सब कुछ अस्त हो जाएगा आपके जीवन में, लेकिन जब यीशु आपके जीवन में आता है, जब कॉर्नरस्टोन आपके जीवन में आता है, तब नई शुरुआत होती, दर्शन की शुरुआत, स्वप्न की शुरुआत होती है आपके जीवन में। हालेलुया। रिबा लखा राबा शादा रिखा राथाना बाबा बाबा। ओ हालेलुया। सीढ़ी कनेक्शन प्रभु आपको देता है, नया कनेक्शन देता है, पृथ्वी से स्वर्ग का कनेक्शन। अब तक आपने कोई बातचीत नहीं किया था, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब बेथेल में आ जाता है
परमेश्वर के साथ बोलना आप चालू करते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत करना आप शुरुआत करते हैं। हालेलुया। दर्शन देखना शुरुआत करते हैं, प्रभु का दर्शन देखते हैं, स्वर्गदूतों का दर्शन देखते हैं। हालेलुया। और प्रभु की आवाज सुनने का आपको मौका मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रार्थना कर, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। रिबाला कुराबा शांदाला बारा बारा। धन्यवाद। देखिए भाई में प्रार्थना में गवाही करेंगे। हालेलुया। Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes Lord. विश्वास किया मेरे खुदा परिशुद्धता, उसे परिशुद्धता यकीन करने की परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा कार्य करेगा मेरे खुदा। आपने प्रभु इसहाक को दिया मेरे खुदा, इसहाक ने परिशुद्धता इस प्रकार उसके पिता ने प्रभु आपकी आज्ञाओं पे चला, उसी प्रकार परिशुद्धता अपने पिता के समान आपकी आज्ञाओं पे चलता रहा प्रभु, और आशीषित हुआ मेरे खुदा। परिशुद्धता हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं पे चले मेरे खुदा, और हम आशीषित हो, हमारा परिवार आशीषित हो मेरे खुदा। परिशुद्धता बड़ी आशीष से आप हमारे जीवन को भरने जा रहे हैं प्रभु, हमारा परिवार आशीषित होने जा रहा है आज के दिन। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आने वाला सप्ताह मेरे खुदावंत प्रभु हमारे लिए बड़ी गवाही होगा, हमारे लिए बड़ी आशीष होगा। हमारा रोजगार परिशुद्धता हालेलुया आशीषित होने जा रहा है प्रभु, हमारा परिवार आशीषित होने जा रहा है, हमारा बिजनेस जॉब प्रभु पढ़ाई आशीष देने वाला होने जा रहा है खुदावंत परिशुद्धता। इस प्रकार प्रभु याकूब को प्रभु स्वप्न में आपने दर्शन दिया मेरे खुदा, से बात किया मेरे खुदावंत, उसी प्रकार प्रभु आज जीवन में हमारे दर्शन होने जा रहा है मेरे खुदा। विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह सच्चा उद्धारकर्ता आज हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। विश्वास करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु हमारी योग्यता से बढ़कर आप हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नाम से दूर होने जा रही है। हर एक प्रकार का प्रभु छुटकारा आज हमारे जीवन में है मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हालेलुया। बड़ी खुशियां प्रभु हमारे परिवार में होंगी मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हालेलुया प्रभु, हर एक प्रभु हमें देख के कह पाए प्रभु कि ये नहीं मसीह का बंदा है मेरे खुदावंत प्रभु, परमेश्वर इसके साथ है मेरे खुदावंत प्रभु। हमारी आशीष के लोग देख पाए कि नहीं सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन को एक आध्यात्मिक स्तर पे ले जाता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदावंत परिशुद्धता, हम पूरा समर्पण प्रभु आपको देते हैं मेरे खुदा। हमारे जीवन में पहला स्थान हम आपको देते हैं मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, मैं परिशुद्धता अपनी वचनों में बढ़ा मेरे खुदावंत परिशुद्धता, पवित्रता से कर मेरे किसी भी तरह का पाप का स्वभाव हमारे जीवन में ना होने पाए मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हर एक पाप की बात को हम डांटते हैं यीशु निकल जाए मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हर एक गरीबी का चीजें प्रभु यीशु नाम से निकल जाए हमारे परिवार से, कर जाए यीशु नाम से दूर हो जाए मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हालेलुया प्रभु, हमारे फाइनेंस को ब्लेस करे मेरे खुदावंत परिशुद्धता, हमारे परिवार को ब्लेस करे मेरे खुदा, हमारे रिश्तेदारों को ब्लेस करे मेरे खुदा। हर एक कोना यीशु मसीह का जय जयकारा लगाए मेरे खुदा, पूरा देश विदेश में परिशुद्धता आपका नाम का परिशुद्धता। हालेलुया प्रभु, जागर हो मेरे खुदावंत परिशुद्धता। जवानों को प्रभु आप ब्लेस करे मेरे खुदा, किसी प्रकार की बुराई में प्रभु जीवन नाश ना करे मेरे खुदा। हजारों से जवान लोग प्रभु आज अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं मेरे खुदा, उन लोगों को प्रभु की आदतों से आप छुटकारा दे मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, आपके वचनों को प्रभु वो जान पाए, अपने जीवन को प्रभु आपको समर्पण करें मेरे खुदावंत परिशुद्धता। यीशु नाम में पापों से छुटकारा है मेरे खुदा, विश्वास करते हैं प्रभु आपके पवित्रता उससे प्रभु हम शुद्ध हो चुके हैं मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हालेलुया प्रभु, हम विश्वास करते हैं आने वाला समय मेरे खुदावंत परिशुद्धता जाति जाति यीशु मसीह को मानेगी मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हर एक कोना यीशु मसीह को जान पाएगा मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हालेलुया, आपका आगमन निकट है मेरे खुदा, विश्वास करते हैं मेरे खुदा आप जल्दी प्रभु आने वाले हैं मेरे खुदावंत। पृथ्वी का उद्धार होने वाला है मेरे खुदावंत परिशुद्धता। हजारों आत्माएं बचाए जाए मेरे खुदावंत परिशुद्धता। विश्वास करते हैं मेरे खुदा
हमारे अंदर प्रभु उस आत्मा को प्रभु जागर कर मेरे खुदावन प्रभु बढ़ोतरी कर प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हमारी सेवा को बढ़ाए मेरे खुदावन परिशुद्धता हमें उपयोग कर मेरे खुदावन परिशुद्धता उपयोग में होना चाहते हैं मेरे खुदा अपने वचनों को बांटना चाहते हैं मेरे खुदावन परिशुद्धता हमारे जीवन में वो मौका दे मेरे खुदावन परिशुद्धता हम भले किसी भी मोड़ में हो मेरे खुदावन परिशुद्धता हम अपने वचनों को लेके मेरे एक ढाल के समान प्रभु उपयोग में ला पाए मेरे खुदावन परिशुद्धता हालेलुया परिशुद्धता हर एक तरीके से प्रभु हमें संभाल मेरे खुदा यहाँ पे हर एक भाई बहन को आप आशीषित करें मेरे खुदा आज जो भी बोझ प्रभु यहाँ पे लेके आए उस बोझ को आप हल्का करें मेरे खुदावन परिशुद्धता आने वाला सप्ताह मेरे खुदा एक बड़ी प्रभु आशीषित मेरे खुदावन हर एक अपने परिवार में हो मेरे खुदावन हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन परिशुद्धता सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है मेरे खुदावन प्रभु याकूब यूसुफ शैमुएल दानियल के समान प्रभु हमारा जीवन आशीषित होने जा रहा है मेरे खुदा हालेलुया मैं विश्वास करता हूं यहाँ पे हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करें यीशु के नाम से मांगता हूं आमीन आमीन।